Welcome again to my channel. So first of all, I would like to thank all my subscribers and my viewers who are liking my videos. So once again, we are here for a new real IELTS speaking practice here. So again, हम इस वीडियो में पार्ट 1 स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे और हम देखेंगे कि हमने पार्ट 1 के आंसर्स शॉर्ट एंड प्रिसाइज कैसे आंसर करने हैं. So let's begin. Good morning. My name is Amandeep Kaur and I am examiner for today. What is your name? My name is Dinesh Thakur. How may I call you? You may address me Dinesh. You may address me. You may address by my name Dinesh. ऐसे बोलना है आपने आंसर. So where are you from? I am from Ludhiana. मैंने पहले भी समझाया था. I am from Ludhiana is quite short answer. इसका आंसर आप कैसे बोल सकते हो? I belong to Punjab, which is one of the major cities in. Sorry, I belong to Ludhiana, which is one of the major cities in Punjab. Right? So today our first topic is memory. And first question for today is, why do some people have a better memory while others just don't? Some people born with the good memory. They have a good memory genetically, but some people disciplined. So basically इसका आप आंसर कैसे बोल सकते हो? अगर आप अपनी खुद लाइफ में से देखो, कईयों की मेमोरी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होती है? बिकॉज ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स एंड बिकॉज ऑफ देयर गुड लिविंग स्टाइल्स, देयर गुड लाइफ स्टाइल. और दूसरे लोग क्या करते हैं? दे ट्रेन देयर मेमोरी टू बिकम शार्प. ठीक है. सो इसके साथ आप आंसर कैसे बना सकते हो? सम पीपल हैव गुड मेमोरी जस्ट बिकॉज देयर जेनेटिक ट्रेट्स एंड देयर लिविंग स्टैंडर्ड्स or their lifestyles, while others train their memory to be sharp. Just these two lines for answer for part 1 speaking introduction, right? So moving on to the next question, why do some people rely on smartphones to remember things? Why do some people rely on smartphones to remember things? Mobile phones are easy to use. They make easily notes in mobile phone. People make easily notes on mobile phone. They take help of a calendar, notes or Google etc. तो यहाँ पे एक मेजर इनकी मिस्टेक कहाँ हो रही है? He is repeating his answers, he is repeating his sentences again and again. Try to avoid repeating your sentences. अपने sentences या अपने words repeat मत करो. अपनी जो मिस्टेक्स जो आपने एक बार ही बोल दिया, डोंट रेक्टिफाई योर एरर्स, डोंट रेक्टिफाई योर वर्ड्स और योर सेंटेंसेस. जो आपने एक बार ही बोल दिया वो आपने बोल दिया. अब क्वेश्चन क्या है कि लोग ज्यादातर मोबाइल फोन्स पर क्यों रिलाई करते हैं चीजों को रिमेंबर करने के लिए? अगर हम खुद की जनरल लाइफ में से देखें, अगर हमने कुछ इंस्टेंटली हमें कुछ याद आ गया, हमने कुछ पेन डाउन करना है, जैसे मैं वीडियोस ही बनाती हूँ तो मेरे दिमाग में अगर आइडिया आता है तो बजाय कि मैं पेन पेपर ढूंढने जाऊं, मैं अपना फोन निकालूंगी, मैं फोन पे नोट्स का ऐप खोलूंगी, मैं नोट्स में लिख लूंगी. सो इसका मतलब क्या हो गया? जो मोबाइल फोन्स हैं, दे आर इजी टू यूज, दे आर कन्वीनियंट टू यूज एंड बिकॉज ऑफ देयर एक्सेसिबिलिटी people rely more on smartphones. तो इसका आप आंसर कैसे बना सकते हो? You can say mobile phones easy accessibility and convenience makes it more reliable for people in today's generation. Moreover, mobile tools like calendar, Google, notes, reminder and other apps, they provide quite an easy accessibility for users to make notes and get an alarm on it. So आप इसका आंसर ऐसे easy way में बोल सकते हो. So moving on to the next question. अब इस वीडियो के एंड में we are going to discuss 3 to 4 tips for speaking section. So don't miss this video. Watch this video till the end. Moving on to next question. Are you good at memorizing things? Yes, I am good at memorizing things because early in the morning I prepare my timetable for daily schedules. तो अगेन मतलब मेरे को ये आंसर कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा. आप भी कमेंट सेक्शन में बताना आपको इनकी स्पीकिंग किस बैंड किस लेवल की लग रही है. ही इज अ बिगिनर, so I don't think so he will be able to score more than 5, but with practice obviously he can score even 7 bands as he is at least giving answers instantly na.
he has some ideas, but due to some lack of practice he is unable to answer the questions, but with practice he will definitely score 7 and above. So moving on to the question क्या था, are you good at memorizing things? अब अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे को चीजें याद रहती हैं। मैंने अब लास्ट वीडियो में भी एक आंसर बनाया था, उसके बेसिस पे ही मैं इसका आंसर भी बना सकती हूँ। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी जाके जरूर चेक कर लेना। तो इसका आंसर मैं क्या बोल सकती हूँ, आई एम क्वाइट organized and I keep track of all my things and my schedule. So yes, I am good at memorizing things because of my better lifestyle and time management skills. ठीक है, मैं ऑर्गेनाइज्ड हूँ, अपनी चीजों को ट्रैक में रखती हूँ, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलती हूँ, इसलिए मैं अपनी चीजों को कभी नहीं भूलती। आई एम गुड एट मेमोराइजिंग थिंग्स। मैंने ये पॉइंट्स बोल दिए। अगेन आई हैव यूज्ड द फ्रेजल वर्ब हियर, आई कीप ट्रैक ऑफ माय शेड्यूल। ट्रैक ऑफ, टू कीप ट्रैक ऑफ का मतलब होता है अपनी किसी भी चीज का एक रिकॉर्ड रखना, एक ध्यान रखना, ट्रैक में रहना। सो ऐसे आप इन चीजों के आंसर्स बोल सकते हो। तो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज टॉपिक इज, हैव यू एवर फॉरगॉटन समथिंग इम्पोर्टेंट? No, I never forgotten something important because as usually I tell you that I prepare my timetable in early morning, so I never forgotten something. तो इसका आंसर अगर मैं बोलती, मैं कैसे बोलती, एज आई प्रीवियसली मेंशन दैट आई कीप ट्रैक ऑफ ऑल माय स्केड्यूल इन हैंड, सो आई कैन से दैट आई हैव नेवर फॉरगॉटन एनीथिंग इंपॉर्टेंट इन माय लाइफ. So these are the types of questions which you can also practice for IELTS speaking test. And tips, जो आज का पहला टिप है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर एक अपना आंसर क्वेश्चन के सेंटेंस से स्टार्ट किया। तो दिस इज द मेजर एरर विच स्टूडेंट्स नॉर्मली मेक। तो क्वेश्चन सेंटेंस को मैं हमेशा बोलती हूँ कभी भी रिपीट मत करो। अब मैंने जो भी सैंपल आंसर्स बोले, अगर आप उनको जाके रिव्यू करोगे तो देखोगे मैंने कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं किया अपने सैंपल आंसर्स में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू स्कोर 7 एंड अबव इन योर आइल्स। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने अपने आंसर्स टू द पॉइंट बोले, प्रिसाइज बोले। तीसरी बात, मैंने कोई भी हाई फाई वोकैबुलरी वर्ड्स मैंने नहीं यूज करे। स्पीकिंग में सिंपल सी बात है, आपकी ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अननेसेसरी फ्रेजेस ऐड मत करो, अपनी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक रखो और फ्लुएंसी लूज मत करो। अगर ये 4 पॉइंट्स आप दिमाग में रखोगे तो डेफिनेटली आपके 7 एंड अबव स्कोर्स आएंगे ही आएंगे। फिलर्स यूज मत करो, अपनी फ्लुएंसी मेंटेन करके रखो, क्वेश्चन का सेंटेंस रिपीट मत करो, ग्रामर मिस्टेक्स मत करो। अगर आपको वोकैबुलरी नहीं आती तो यूज मत करो, जितना आता है उतना ही बोलो, लेकिन फ्लुएंसी और ग्रामर की मिस्टेक मत करो, तो आपके बैंड्स कम नहीं आएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू एनी मॉड्यूल, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और इवन you can DM me on the WhatsApp number on the screen. Thanks a lot.